Hello everyone, I'm Vikrant, and today in this video we are doing a poem, okay? A poem for class 9th, and the book we are taking it from, that is Beehive, okay? And the poem we are taking the book that is from Beehive, okay? And this is the first poem we have from class 9th, and it's actually an important one, okay? This poem has a lot of things that it can tell us and we can learn from here, and the writer of this poem is Robert Frost, okay? Robert Frost, who was an American poet, okay? He was an American poet and he was born on 26 March 1874 and he died on 29 January 1963, okay? And this poetry, I actually love to teach it, okay? And it's an interesting one. First of all, I'm going to tell you what happens in this poetry, and later on I'm going to explain this poetry from the book line to line, and you guys can read it along with the video, okay? So the first thing we have in this poetry, what does it tell us? That in everybody's life, in everyone's life, we have, like, you can take a person who's standing here and he has two ways to go. ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है, इसके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है? This poetry is actually about choices we make in our life, okay? In everybody's life, we have two choices. First is good one, second is also good one. First can be good one, second could be not good one. So actually the thing what this poet is wants to say कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस करते हैं, ठीक है? आपके पास कोई भी चॉइस करते समय आपके पास दो चॉइस होती है, इधर दिस और दिस, फाइन। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वे को चूज करते हैं और आप कौन से रास्ते पर जाना चाहते हैं। जैसे कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जस्ट सपोज यू गाइज आर राइट नाउ इन 10th standard, okay? Or like right now, sorry, you guys are in 9th standard, but just think when you will be in 11th class and you guys are supposed to choose a subject for you. आपको अपने लिए एक सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है? अब आपने एक बच्चा है 11th क्लास का जिसके कि 10th में कितनी परसेंटेज थी, सपोज 95% वाला बच्चा था एक, फाइन, और दूसरा भी 95% वाला ही बच्चा था। बट हुआ क्या, इसके सिचुएशन को हम कैसे समझेंगे? देखिए, जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है हमारा, he thought that he will become a doctor or a scientist or like an engineer, whatever. So he thought to choose himself science, okay? उसने अपने सब्जेक्ट को साइंस ले लिया उसने, he will continue his study in science, okay? After that, here again we have a 95% student and this student choose himself arts. वो अपने लिए क्या चूज करता है? आर्ट्स चूज करता है, फाइन। इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, यू गैस कैन रिलेट टू इट एंड यू गैस कैन अंडरस्टैंड। हियर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस, हियर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट्स, ओके? दे बोथ हैड इन 10th standard, they both got 95% marks, they both are so intelligent that they can study both, but still one of them chose himself arts and another one science, okay? Now what happens in the future, ये साइंस वाले का रास्ता है और ये हमारे आर्ट्स वाले का रास्ता है, फाइन। अब होता क्या है आगे जाकर के, साइंस वाले के फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सब ने बहुत अच्छा कहा, ओह माय गॉड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, ये एक बहुत ही अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारे 95% आए हैं, नाउ यू हैव चूज योरसेल्फ, आपने अपने लिए क्या चूज किया है? साइंस, ओके? एंड वहीं जब हम आर्ट्स वाले बच्चे की बात करते हैं तो आर्ट्स वाला बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में था, उसके पेरेंट्स ने, उसके फैमिली रिलेटिव्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, सब ने ये होप की थी कि वो डेफिनेटली क्या लेगा? साइंस लेगा, ठीक है? या कॉमर्स लेगा, चलो, एंड देन ही विल बिकम ईदर सीए और डॉक्टर और इंजीनियर और व्हाटएवर, लेकिन उसने चूज किया उसके लिए आर्ट्स लूंगा मैं, तो फाइन। हुआ क्या इसमें, और ये जो बच्चा था इसको इसके घर वाले भी फोर्स कर रहे थे, साइंस वाले को, कि यार मुझे तो साइंस ही, तुझे साइंस ही लेनी है। उसके पापा ने ज़बरदस्ती उसको साइंस दिला दी, इवन दो ही वॉज नॉट एक्चुअली फीलिंग टू डू दैट। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चा था इसने सबकी बातें छोड़ करके, सबने इसको बहुत बहुत बोला कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू टेक आर्ट्स,
you should take science, okay, and you should become a doctor or engineer or something else. But he said, no, this is my life and I'm going to take the decision, I'm going to choose a way for myself, okay. So he chose himself this way, ये वाला रास्ता जिसपे कि मुश्किल से 1 2 3 4 या सपोज ये भी नहीं गए थे, ठीक, लेकिन ये वाला रास्ता जिसपे कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ये सारे जितने भी मैंने निशान किए, ऑल दीज आर पीपल इन अ क्यू, एवरीबडी स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड एवरीबडी जस्ट गोइंग टू दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा बच्चा था उसके साथ कोई नहीं जा रहा था। इट मीन्स उसकी कैटेगरी के उसके जितने पढ़ने वाले कोई भी बच्चा आर्ट्स नहीं ले रहा था और उसके घर वाले भी उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, बट स्टिल सबके अगेंस्ट जाकर के उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना कि नहीं, आई विल टेक आर्ट्स एंड आई विल गो एंड टेक द एडमिशन। फाइन। Later on, after 5 years, we can see after 5 years, and here we will see after 5 years. Fine. After 5 years, इस वाले बच्चे का ये शायद से डॉक्टर बन गया या शायद से इंजीनियर बन गया, एंड आफ्टर दैट उसके बहुत फोर्सली उसको बोला गया था, एंड मे बी वो अपनी डिग्री भी क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, और मे बी उसने कर भी ली, बट ही हैज़ नो जॉब्स, उसके पास कोई जॉब नहीं मिली उसको। फाइन, got it? Next one, arts. 5 years later, he is having a nice job and he is working good just because of, or maybe you can say he is an artist. ठीक है, ये जो स्टूडेंट था एक आर्टिस्ट बन गया है ना, he is very famous one also. So this is what the poet trying to say कि you will be standing in a way, आप एक रास्ते पर खड़े होंगे, आपके पास 2 रास्ते होंगे चूज करने के लिए, but you have to choose the way योरसेल्फ। आपको जो रास्ता है वो खुद को चूज करना है। एक रास्ता है जिस पर कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, आप उस रास्ते पर जा सकते हो, उसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं था, आपकी किस्मत आगे जाके क्या होगा, बट स्टिल इसमें रिस्क नहीं था, इसमें रिस्क था कि वो अपने आप उसको आर्ट्स लेनी थी, सबने मना किया था, बट स्टिल ही टुक दैट रिस्क, उसने कहा मैं रिस्क लूंगा, लेटर ऑन जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्यों? आफ्टर 5 years 10 years आई विल बी एबल टू से, अगर मैं सक्सेस हुआ इस रोड पे तो मैं कह पाऊंगा कि जो चूज मैंने किया था, जो रास्ता मैंने चूज किया था वो मेरा खुद का था, मैं खुद उस पर जाना चाहता था, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ उसी की वजह से हूँ। वहीं जो ये दूसरा वाला हमने बात की जिसने कि वो रोड चूज की जिस पे कि सब लोग जा रहे थे, ठीक है, वो अब ये नहीं कह सकता है किसी भी तरीके से कि यार गलती हो गई। क्यों? बिकॉज ही चोज द रोड, उसने वो रोड चूज किया था जो कि उसके पेरेंट्स ने उसको बोला था, या उसके रिलेटिव्स ने बोला था, उसके फ्रेंड्स ने बोला था, या उसने प्रेशर में आके लिया था, वो रोड चूज किया था जो कि उसको सेफ लग रहा था, जिसपे कि सब लोग जा रहे थे, लोगों को सक्सेस मिली हुई थी, ठीक है, तो उसने उसको फॉलो किया इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिज ओन वे। उसने अपना खुद का रास्ता नहीं बनाया अलग जो कि कोई और फॉलो करे, ही फॉलोड समबडी एल्स। सो दिस इज हाउ द पोएट ट्राइंग टू टेल अस that every person has different ways in their life, but it's on you how do you choose it, ठीक है। and later on अगर आप उस रास्ते पे गए भेड़ चाल पे तो आप कह ही नहीं सकते कि देखा मैंने किया, because everybody is doing the same thing, but if you are going to the another way you have taken the risk and now you have moved ahead and you have got the success, or just think for the worst, you have not got the success but still that was your decision, you are satisfied with that and nobody can tell you that see I told you, but you can say when you become success in that I chose this way for me, मैंने ये रास्ता चूज किया था और that is why आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ मेरे डिसीजन की वजह से हूँ। So this is what the poet is trying to say in this poetry. Okay, I hope you all got it. Now we will move on to our book. You guys can see here that 2 roads diverged in a yellow word. Fine. The poet is trying to say, अब अपनी बुक खोल लें, उसके अंदर पोम को निकाल लें, and then you guys can see from there what I'm reading it to you. Okay, 2 roads diverged in a yellow wood. Poet क्या कह रहा है कि 2 रोड थी, ठीक है, 2 रोड्स थी, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये खड़ा है, अब इसके सामने 2 रोड है, ठीक है, येलो वुड के अंदर। येलो वुड मतलब कि एक अच्छा भरा हुआ वुड था, ग्रीनरी अच्छे से, उसमें कुछ भी सूखा हुआ नहीं था, एकदम ग्रीन वुड था, उसमें सब कुछ पेड़ पत्तियाँ अच्छे से थी, पेड़ थे बहुत सारे, एवरीथिंग वाज फाइन। सो 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ।
और पॉइंट क्या कह रहा है कि मैं माफी चाहूंगा कि मैं दोनों जो रास्ते हैं उन पर तो नहीं जा सकता हूं। अब ये एक पर्सन ये दोनों पे कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता है। ही कैन गो ओनली ऑन अ सिंगल वे। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग कि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता हूं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और जैसे कि मैं एक ट्रेवलर हूं, वो कह रहा है खुद के लिए कि मैं एक ट्रेवलर हूं, मैं ट्रैवल पे निकला हूं अभी, और बीइंग अ ट्रैवलर आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है। लॉन्ग आई स्टूड, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक रोड पर देखता हूँ जितनी दूर मेरी नजर जा सकती है, जितनी दूर वो रोड मुझे दिख रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है मैं वहां तक उसको देख रहा हूँ, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और बैंड मतलब मुड़ना, ऐसे यूं करके मुड़ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक जा रही है रोड, उसके बाद यहाँ से यूं मुड़ गई, तो उसको यहाँ से आगे तो नहीं दिखेगा, ये वाली रोड तो दिख ही नहीं सकती। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग कि टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स होता है झाड़ियाँ, जो कॉर्नर पे अपन जब रोड पे जा रहे होते हैं तो सड़क, जैसे कि आप जंगल वाले वे से जाएंगे तो साइड में छोटी छोटी जो बुशेस वगैरह होती है, दैट इज कॉल्ड अंडरग्रोथ, अनवांटेड ट्रीज, फाइन। सो वो जो उगे हुए हैं उसकी वजह से वो रास्ता मुड़ गया है और उसको वो रास्ता नहीं दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से कि सॉरी, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता हूँ, और यहाँ से सिर्फ मुझे एक ही रास्ता दिखता है जहाँ तक मैं देखता हूँ, और उसके बाद जब वो अंडरग्रोथ के वहाँ से मुड़ जाता है झाड़ियों के बीच में से, और अब मुझे वो रास्ता आगे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि उस रास्ते में आगे मुझे क्या मिलने वाला है, आगे उस रास्ते पर क्या होने वाला है। He has no idea, ठीक है। After that, in the second stanza, he says, then took the other just as fair and having perhaps the better claim। अब वो क्या कहता है, और फिर मैंने जो दूसरी वाली रोड थी, मैंने वो रोड तय कर ली अपने लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी उतनी ही फेयर लग रही थी मुझे, मैंने सोचा कि यार ये भी वैसी होगी, ठीक है। He thought to choose himself the another road, ठीक है, and having perhaps the better claim। उसने सोचा कि शायद से ये वाली जो रोड है, क्लेम मतलब दावा करना, तो वो कह रहा है कि शायद से ये वाली जो रोड है ये क्या कर रही है, इसका ये ज़्यादा अच्छी दावा कर रही है कि यार मैं तुझे ज़्यादा अच्छे रास्ते पर लेकर के जाऊंगी, या मैं तुझे ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशन पर लेकर के जा सकती हूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रेसी मतलब कि आप लिख लें अनयूज्ड, ग्रेसी मीन्स होता है अनयूज्ड, जो कि यूज नहीं किया गया है, ठीक है। एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, वो रोड जो कि पूरी ग्रास अच्छे से लगी हुई थी, उस पर उगी हुई थी, एंड उसको यूज भी नहीं किया गया था। अब वही बात कि ये वाली रोड जो है इस पे सब लोग जा रहे हैं, तो उसकी जो घास है, उसका जो पेड़ पौधे हैं वो सब थोड़े टूट फूट गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अनादर रोड है जिसपे कि कोई नहीं जा रहा, उसकी ग्रास वैसी की वैसी एकदम हरी भरी, उसको किसी ने पैरों से कुचल करके बेकार नहीं किया है। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, हैड वॉर्न देम दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, had warned them really about the same। अब वो क्या कहता है, लेकिन जब वहां से जो लोग हैं वो वहां से जब निकल जाएंगे, मतलब कि अभी तो ये वाली भी सेम है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है, मतलब कि जो रोड है जिसपे कोई नहीं गया है वो एकदम हरी भरी है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे, लेकिन जब वहाँ से लोग चले जाएंगे तो वो रोड भी दूसरी रोड की तरह ही हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग कि मुझे ये वाली रोड जिसपे से कोई नहीं गया है वो मुझे ज़्यादा अच्छा क्लेम लगा, मतलब कि ज़्यादा अच्छी रोड लगी। आफ्टर दैट इन स्टैंजा नंबर 3 ही सेज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब वो क्या कहता है, लेकिन यार बाकी तो सब ठीक है, अब मैं सुबह सुबह आया हूँ, इस रोड पे खड़ा हूँ, और अब रात भर में जितनी भी पत्तियां वगैरह पेड़ पे से गिरनी थी वो भी गिर गई है, और अब मुझे दिख रहा है कि दोनों रोड जो हैं वो सेम है। कल तक अगर रात में आके देखते तो एक रोड पे बहुत सारे लोग गए थे तो रोड खराब दिखती, ठीक है, एक रोड जो थी जिसपे कोई नहीं गया था वो रोड बिल्कुल प्लेन दिखती, लेकिन अब दूसरा दिन हो गया है, सुबह हो गई है, सारे पेड़ के जो पत्ते हैं, जो सब कुछ है वो वहां पे आके गिर गया है, और उसने उस पूरी रोड को दोनों को बराबर कर दिया है। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि यार किस पे कौन गया था। ही कैन नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि कौन सी रोड से ज्यादा लोग गए, कौन सी से कोई नहीं गया, बिकॉज बोथ आर इक्वली ले, दोनों एकदम सेम है। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, और वहां पे जो पत्तियां हैं उसके ऊपर ट्रॉडन ब्लैक मतलब कि पैरों ने ऐसे कुचल करके उसको काला नहीं कर दिया है अभी तक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो बोलता है कि ओ मैंने क्या किया, मैंने पहली जो रोड थी उसको तो दूसरे दिन के लिए रख दिया, कि भाई इस पे तो अगर मैं इस रोड से वापस आ सका घूम करके, सक्सेस मिली मुझे, आ गया मैं वापस से अपनी डेस्टिनेशन से, देन डेफिनेटली आई विल टेक दिस अनदर वन एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंस देयर, बट राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस सेकंड वन, ठीक है। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली वाली जो थी वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन जो सेकंड वाली थी, येट नोइंग हाउ
हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, और मैंने देखा कि कैसे जो ये जगह, कैसी जो दूसरी वाली रोड है ये मुझे किस तरफ ले जाती है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मैंने डाउट किया, मुझे डाउट लगा कि यार मैं इस रोड पे जा तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कभी यहाँ से वापस आ पाऊंगा या फिर नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, सो आफ्टर दैट इवन दो ही चोज, ही थॉट कि यार ये रोड जिसको मैंने चूज किया है, कभी मैं वापस आऊंगा या फिर आगे जाकर के मुझे और कोई जंगली जानवर मिल जाएंगे, वो मुझे खा जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। ही जस्ट थॉट, कुछ भी हो सकता था उस रोड पे, उसको दोनों ही रोड का पता नहीं था कि कौन सी रोड अच्छी है कौन सी नहीं है। ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब वो बोलता है, साय मतलब होता है आह भर के बोलना, ओह अब मैं ये कह पाऊंगा। ठीक है, वो कहता है कि बाद में जब कभी मैं यहाँ से लौटूंगा इस रोड से, देन आई विल बी एबल टू से दिस थिंग व्हाट समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब कि बहुत समय बाद, बहुत सालों बाद जब कभी मैं इस रोड से वापस लौटूंगा, देन टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तब मैं कह पाऊंगा कि वहां पे जब मैं खड़ा था तो दो रोड थी, लेकिन उन दो रोड से मैंने सिर्फ कौन सी रोड ली, एक ही रोड ली। ठीक है, द लेस ट्रेवल्ड, जिसपे कि बहुत ही कम लोग गए थे। ठीक है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वो चीज है जिसने कि ये पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव सक्सीडेड इन माय गोल। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो मेरी चॉइस थी, मेरा डिसीजन था कि मैं इस लेस ट्रेवल्ड वाली रोड को लेता हूं जिसपे कि बहुत ही कम लोग गए हैं, गिने चुने, लेकिन वो रोड नहीं चूज की उसने जिसपे कि बहुत सारे लोग गए थे। सो दैट इज व्हाई व्हेन ही गॉट द सक्सेस he will definitely able to say that this was my decision and I have done all these things. Okay, after this I hope you all have understood this poetry very well, and I will add on your question answers of this poetry in this video only. You guys can just pause it, take the screenshot and write it down in your copies. Okay, and I hope this video will help you out. Thank you so much. Enjoy your day.